Hello, hi dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, welcome you all in fourth lecture of ONS subject. Dear student, in last lecture we were discussed about the classification or types of fiber optic cable, and here from today onwards we are going to study about the block diagram of optical fiber communication system. So let's start with our departmental vision, mission and program educational objective. Let's see in next slide. Here it shows the vision of our electronics and telecommunication department. The vision is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineer. ये हमारे डिपार्टमेंट का विजन है। मीन्स आप इसको गोल ऑफ डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो विजन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, ये आपको बताता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में वो हमें अचीव करना है, वो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स तैयार करके। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट सेट किया है। तो लेट्स सी the vision mission statement of our electronics and telecommunication department. Here I represent the mission of electronics and telecommunication department. The mission is having 5 in number for achieving the vision statement of our department. The very first mission is imparting quality education for to meet society and industry needs. यानी क्वालिटी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, और वो भी जो सोसाइटी की नीड्स होंगी या फिर इंडस्ट्री की नीड्स होंगी उसके द्वारा। मिशन 2 स्टेटमेंट इज प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट। यानी इथिकल और आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाएगा। इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग थ्रू इनोवेशन एंड को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट। आपको क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव करने के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम अरेंज करेंगे उसके द्वारा हम विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फोर्थ मिशन इज enhance the leadership skill and employability or higher education। लीडरशिप स्किल इन्हांस करना या फिर एम्प्लॉयबल आपको बनाना या फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको सुटेबल करना, इस तीनों क्वालिटी की द्वारा हम अपना विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे आपका बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फोकस करेंगे। सो विद दिस 5 मिशन स्टेटमेंट वी कैन डेफिनेटली अचीव आवर विजन स्टेटमेंट दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। नाउ वी मूव ऑन टू प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन नेक्स्ट स्लाइड। Here this slide shows the program educational objective. Means after completing your diploma, after 2 or 3 years, this program educational objective is achieved whenever you going for in the industry or whenever you going at higher studies. The program educational objective is very first one is PO1. This PO1 means Program Educational Objective 1, that represent
provide socially responsible, environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problem, adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. And third one is solve broad based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. So through this program educational objective, we can definitely achieve our mission as well as our vision statement. Now, here in this slide shows the course outcome and its program outcome mapping. You know very well about the course outcome, means after completing our two first units, the outcome which we achieved through that first unit, that means it is a course outcome. Okay, and that course outcome is mapped with the program outcome. Here I represent the course outcome, that is interpret the function of various block of optical fiber system. इस पर्टिकुलर फर्स्ट यूनिट में हमें फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के द्वारा पढ़ना है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल भी पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक के, और पूरे फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से सोर्सेस या फिर डिटेक्टर यूज़ होते हैं, पूरी ब्लॉक डायग्राम में क्या कौन से सोर्सेस और कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है. एंड इट्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज शोन हियर. Previously, we used 10 number of POs here. You all know very well. Previously, हम 10 number of POs यहाँ पे यूज़ करते थे, लेकिन as per the new guidelines of NBA, now here I mention only 7 number of POs. Means 10 number of POs are clubbed into the 7 number of POs. This course outcome is mapped with the 7 number of POs. So I map this course outcome to the POs, like PO1 is related to the basic and discipline knowledge, so I mapped at a level 3. PO number 2 is mapped at a level 1. PO3 is mapped at a level 3. PO4 is mapped at a level 4. Similarly, PO7, that is based on the lifelong learning, is mapped at a level 1. So please remember here, from today's onwards we are going to map only 7 number of POs here. Okay, so this is all about the course outcome and its PO mapping. Now we move to the our today's topic, that is classification of fiber optic cable. Dear student, today we are going to discuss the topic of fundamental of fiber optic communication, that is from unit number 1, and from that unit we are going to discuss about the topic 1.4 optical fiber communication system. In this particular topic we are discussing about the block diagram of optical fiber communication system, and this block diagram consisting some transmission section and some receiving section which are connecting through the optical fiber cable. Means here the channel is optical fiber cable. So let's start with some learning outcome. Here this slide shows the learning outcome for our today's session. Means after completing our today's session, the learners will be able to explain the block diagram of optical fiber communication system. मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोग ब्लॉक डायग्राम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की ड्रॉ भी कर सकते हो और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिस्क्राइब रोल ऑफ ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर. मीन्स वॉट एवर optical sources that we are using in optical fiber communication,
तो इट्स रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो आप उसका रोल डिस्क्राइब कर सकते हो। और आज का सेशन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होने के बाद आप सभी को ये समझ में आएगा कि कौन से सोर्सेस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट में करते हैं और कौन से डिटेक्टर्स अपन यूज़ करेंगे एट द साइट ऑफ रिसीवर जो लाइट का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। नाउ वी मूव ऑन टू अवर द topic, that is block diagram of optical fiber communication system. So here I mentioned the block diagram of optical fiber communication, and this is very important point as per your exam point of view, because lots of time the question asked in previous board exam based on this topic. So here I mentioned the block diagram of optical fiber communication system. This block contains information source, electrical transmit, optical source, optical fiber cable, and then optical detector, electrical receiver and destination. Means this upper portion is called as a transmission section, and this optical fiber up to this is a channel, or we can say that it is a medium, and here I use a medium as a optical fiber cable, and this medium is considered in a wired channel network. Okay, now this optical detector, electrical receiver and destination contained in a receiver section. This is our receiver section, and this is our transmission section. This is our transmission section from information source to up to this optical fiber cable. This optical fiber cable up to this optical detector called as a wired network consisting from optical fiber cable. So here I start from the information source. The original information signal, it may have in the form of video signal, it may form in the form of voice signal, or it may contain some audio information. So that information source is maybe in the form of video, maybe in the form of audio, or maybe in the form of voice signal. So this information signal is need to first convert into the electrical signal. Okay, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसका कन्वर्शन होना ज़रूरी है. ओके, नाउ दिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट कन्वर्ट्स original information signal into electrical signal, and then that electrical signal is fed to the optical source. Now optical source is play the important role here, which converts electrical signal into its light form. मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल सोर्स के आउटपुट में हमें लाइट के फॉर्म में सिग्नल मिलेंगे जो हमने यहाँ से ट्रांसमिट की. ओके, सो इसको कन्वर्ट कौन करेगा? तो सबसे पहले जो भी हमारे ओरिजिनल सिग्नल है उसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट, एंड देन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट के फॉर्म में करेगा ऑप्टिकल सोर्स. सो हियर द ऑप्टिकल सोर्स may be used as a LED or may be used as a laser. आप सभी ने LED भी देखा है और लेज़र भी देखा है. तो LED तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन लाइट में करने के लिए यूज़ करेंगे, या फिर हम लेज़र का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिकल सोर्स करके. देन जो लाइट सिग्नल हमारे यहाँ पे हमें मिले हैं वो हम थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर केबल हम पास करेंगे रिसीवर सेक्शन की तरफ. नाउ रिसीवर सेक्शन सबसे पहले वहाँ पे सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे. तो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर एक ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करेंगे. नाउ ऑप्टिकल डिटेक्टर मीन्स इट कंटेन सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो लाइट को डिटेक्ट करेंगे. तो लाइट को हमने प्रीवियस सेमिस्टर में बोलिए या फिर लोअर सेमिस्टर में हमने पढ़े हैं कि हमें ऑप्टिकल डिटेक्टर करके हम यूज़ करेंगे फोटोडायोड यहाँ पे.
या फिर एवेलेंच फोटोडायोड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट सिग्नल का कन्वर्शन जो हमने किया है ट्रांसमिटिंग साइड में, तो ऑप्टिकल डिटेक्शन हम यहाँ पे करेंगे थ्रू दिस एवेलेंच फोटोडायोड और फोटोडायोड से। देन एवेलेंच फोटोडायोड या फिर फोटोडायोड कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल का किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे रिसीव होंगे एंड वो पास होंगे फिर डेस्टिनेशन के पास। सो थ्रू दैट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड how the signal is transmit from transmission section to the receiver section, means we can say that up to the destination. So this is all about the block diagram of optical fiber communication. In next slide we can discuss some important point based on this block diagram of optical fiber communication. So now here I mention some important points based on our previous block diagram of optical fiber communication system. So very first important points related to the information source which provides the input electrical signal, यानी इंफॉर्मेशन सोर्स जो है अपना वो वॉटेवर वो वॉइस सिग्नल है, वो ऑडियो सिग्नल है या फिर वो वीडियो सिग्नल है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर कंटेन्स इलेक्ट्रिकल स्टेज विच ड्राइव एन ऑप्टिकल सोर्स टू गिव मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट वेव कैरियर। So here electrical transmitter means which also convert some original information signal into its electrical equivalent signal. So here in this particular electrical transmitter we can modulate our signal also, means we can add some higher frequency signal into its original signal. Okay, so this is related to the electrical transmitter. Then the third important block is related to the optical source which provide electrical to optical conversion and can be its LED or laser. Means जो ऑप्टिकल सोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ऑप्टिकल कन्वर्शन, ऑप्टिकल मीन्स ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, ओके, तो लाइट में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्टिकल सोर्स ये LED हो सकता है या फिर लेज़र। But here I mention some requirements of LED or laser or we can say that optical source. तो requirement क्या है, किस प्रकार की नीड होती है एज अ ऑप्टिकल सोर्स बनने के लिए। तो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हाई आउटपुट पावर, यानी जो ऑप्टिकल सोर्स रहेगा उसका आउटपुट जो रहेगा वो हमेशा उसका पावर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो उसका आउटपुट भी, जो भी आउटपुट देगा वो ऑप्टिकल सोर्स, वो आउटपुट भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ टाइम, और आप सभी को पता है कि LED की और लेज़र की भी लाइफ ज़्यादा होती है, तो अपन ये प्रेफर करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ, यस, आप सभी जानते हो कि एक लाइट का बीम होता है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल विड्थ उसका नैरो रहेगा, कम रहेगा, तो लाइट उतना फास्ट और एक पर्टिकुलर बीम में आगे जाने वाला, ओके। देन हाई लिनियरिटी, उसका जो भी अपन इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिलेगा, दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर। वो कैसा होना चाहिए, उसकी लिनियरिटी कैसी होनी चाहिए, हाई। So this is some important point based on fiber optic communication. In next slide also we discussed about some points related to the fiber optic communication. Optical fibers. This particular important point is related to the medium or channel that we prefer for this optical communication, and generally this is optical fiber communication, so 101% we can go for the optical fiber cable here, okay. So I write here some related to the optical fibers. Optical fiber used as a transmission medium to compensate for
losses during transmission, repeaters or optical amplifier can be used at a regular intervals. Yes, यहाँ तक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करना है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल, और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर कोई लॉसेस आते हैं, लाइक हमारा जो लाइट सिग्नल है वो स्प्रेड हो सकता है, वो लीक हो सकता है, या फिर उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं किया तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है। ये जितने भी लॉसेस आते हैं उस लॉसेस के बारे में हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तो टिल डेट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल लॉसेस आते हैं, और अगर वो लॉस आते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो रिपीटर्स और एम्पलीफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेंगे एट अ रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ डिस्टेंस के बाद हमें उस लाइट सिग्नल को रिपीटेशन मोड पे लाना पड़ेगा या फिर एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑप्टिकल फाइबर की, तो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स आर लो डिस्पर्शन, लो फाइबर नॉन लिनियरिटी, लो अटेन्यूएशन, हाई ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइज रेशो एंड लार्ज रिपीटर स्पैन। यानी हमें लो डिस्पर्शन चाहिए, उसमें एक दूसरे के ऊपर सिग्नल ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसके कारण डिस्पर्शन लॉस उसमें कम होना चाहिए। लोअर फाइबर नॉन लिनियरिटी, यानी उसमें नॉन लिनियरिटी कम होनी चाहिए। लो अटेन्यूएशन, यानी नॉइज़ कम होनी चाहिए, अटेन्यूएट नहीं होना चाहिए हमारा सिग्नल। हाई ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, ये हाई होना चाहिए सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। और लार्ज रिपीटर स्पैन, यानी बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हमें ज़रूरत पड़नी चाहिए सिग्नल को रिपीट या फिर एम्पलीफाई करने की। सो दिस इज़ रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिटेक्टर। अभी डिटेक्टर आप सभी ने मॉड्यूलेशन पढ़ा है, तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर सर्किट पढ़े हैं, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी और आपने एनालॉग कम्युनिकेशन में भी डिमॉड्यूलेशन पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हमें सिग्नल अभी जो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिशन के तरफ से आ रहा है उसको अभी डिटेक्ट करना पड़ेगा रिसीवर साइड में। तो उसके लिए हमें कौन से, जैसे हमने ट्रांसमिशन साइड में ऑप्टिकल सोर्सेस एलईडी और लेज़र का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें कौन से डिटेक्टर यूज़ करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई राइट ऑप्टिकल डिटेक्टर डिटेक्ट्स एंड कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल टू प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब वो लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल में। कौन? ऑप्टिकल डिटेक्टर। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन से सर्किट या फिर कौन से डिवाइसेस हम ऑप्टिकल डिटेक्टर करके यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है फोटोडायोड्स, फोटो ट्रांजिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम एवरेज फोटोडायोड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज फोटोडायोड ये क्या होते हैं, उसको हम ऑप्टिकल डिटेक्टर सर्किट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल डेट आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि ऑप्टिकल सोर्सेज के लिए हम एलईडी और लेज़र का यूज़ करेंगे और ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए हम फोटोडायोड और फोटो ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ऑप्टिकल सोर्सेज की हमने रिक्वायरमेंट देखी थी, वैसे ही ऑप्टिकल डिटेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर आर सेंसिटिव एट ऑपरेटिंग वेवलेंथ। वो एक पर्टिकुलर लाइट की जो वेवलेंथ रहेंगी उस पर सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब अगर लो इंटेंसिटी का भी लाइट सिग्नल अगर आता है तो उसको भी उसने डिटेक्ट करना चाहिए। लो पावर कंजम्पशन एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज, और वो जो ऑप्टिकल डिटेक्टर सर्किट है, ऑप्टिकल डिवाइसेस है, वो लो पावर पे ऑपरेट होने चाहिए या फिर लो वोल्टेज पे ऑपरेट होने चाहिए। और उसका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, स्मॉल साइज एंड कॉस्ट कैपेबिलिटी ऑफ इंटरनल गेन एंड लो नॉइज। सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट ये ऑप्टिकल डिटेक्टर में होने चाहिए, तभी ये एक स्टैंडर्डाइज ऑप्टिकल डिटेक्टर हम फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। Next, repeaters and optical amplifier. Now, repeaters and optical amplifier
ये हमने देखा है प्रीवियस इसमें कि रिपीटर्स क्यों अपन यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्यों अपन यूज़ करते हैं उसमें। बिकॉज अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर कुछ लॉस अगर इनकर्ड होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में, तभी हमें सिग्नल की क्वालिटी स्टेबल रखने के लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करेंगे या फिर हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। So here I write to compensate for signal degradation in long distance, convert optical signal to electrical signal, restore the signal, use them converting back to optical signal for further transmission। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि लॉस के वजह से अगर सिग्नल डिग्रेडेशन होता है, क्वालिटी उसकी डिस्टर्ब होती है ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस, और जब शॉर्ट डिस्टेंस रहे के लिए हम ट्रांसमिट करेंगे तब क्वालिटी ऑफ सिग्नल स्टेबल रह सकती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में लॉसेज ज़्यादा आएंगे, उसके वजह से सिग्नल डिग्रेडेशन हो सकता है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए या फिर कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिकल सिग्नल में और उसको फर्दर ट्रांसमिशन करने के लिए हम रिपीटर्स और ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। दिस मेथड इंक्रीजेस कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूसेस ऑपरेशनल बैंडविड्थ। Optical amplifier simply amplify the optical signal. They provide improved SNR. SNR मतलब होता है यहाँ पे signal to noise ratio due to all optical domain operation। अगर हम रिपीटर्स या और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं तो उसमें अपना सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जो है वो इम्प्रूव होता है। क्यों? बिकॉज हम फिर से उसका गेन अगर इम्प्रूव करते हैं एम्प्लीफिकेशन की वजह से, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो ये क्या होता है, इम्प्रूव होता है। सो हियर आई समराइज अवर टुडेज सेशन आफ्टर डिस्कसिंग on important topics, that is block diagram of optical fiber communication system. So we can easily write the explanation on the basis of whatever important points we discussed. Okay, so after completing our today's session, now you are able to explain the block diagram of optical fiber communication system, and second one is describe the role of optical sources and detector। तो आज का हमने जो टॉपिक पढ़ा वो कंप्लीट होने के बाद आप ऑप्टिकल फाइबर ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम की ड्रॉ कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और ऑप्टिकल सोर्सेज क्या है और डिटेक्टर क्या है ये भी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल सोर्सेज एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। थैंक यू सो मच। आई होप you understand this session very well. Once again, thank you.